ہسپتال کے اسٹول پر بیٹھی پریزے کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے اور جیسے جیسے نرس اس کے جلے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی ویسے ویسے ہی وہ تکلیف سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں بھینچ رہی تھی، جبکہ امان دوسرے بینچ پر بیٹھا اس معصوم لڑکی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کسی تکلیف میں اتنا حسن میں آ سکتا ہے انسان پر؟ وہ حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بے دردی سے اپنے گلابی ہونٹوں کو مسلسل چبا رہی تھی۔ جب نرس نے دوائی لگا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو اس لڑکی نے بھی اپنے ہونٹوں کو دانتوں کی قید سے آزاد کر دیا تھا، جن میں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ امان مزید سوچتا، نرس نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تب سے لے کر اب تک وہ دماغ میں نہ جانے کتنے ہی نام سوچ چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس لڑکی پر جچتا ہو، مگر جس قدر وہ خوبصورت تھی امان کو کوئی بھی نام اس کے لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پریزے، نام تو بالکل جچتا ہے تم پر۔ امان نے توصیفی نگاہوں سے پریزے کو دیکھا تو اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ تبھی مورے کا فون آ گیا۔ امان وہ بنی ہوئی لڑکی، ابھی مورے نے اتنا ہی کہا تھا جب امان چنچلا کر بولا، موم بس کر دیں، ابھی میں باہر ہوں، یہ قصے بعد میں سنا دیجیے گا مجھے، ابھی نہیں سن سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اب اسے اپنی ماں اور اس لڑکی سے چڑ ہونے لگی تھی جو اس کے نکاح میں آئی تھی۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، اسی وجہ سے وہ گھر نہیں جاتا تھا۔ آج جب گھر آیا تو اپنی ماں کا ظلم دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اسے تو اس لڑکی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے نکاح میں بنی ہو کر آئی تھی، حتیٰ کہ امان کو اس لڑکی کا نام تک یاد نہیں تھا، اور مورے تھیں جو دن میں 2 سے 3 مرتبہ اسے فون کر کے اس کی بیوی کی شکایت لگانا ضروری سمجھتی تھیں۔ اوپر سے بلاتی بھی اسے وہ لڑکی کر کے تھیں، جس سے امان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ لڑکی یعنی پریزے اس کی بیوی ہے، جسے دیکھ کر کتنے ہی پل وہ ٹھہر گیا تھا۔ گھر جانے کے راستے میں اس نے ایک کیفے پر گاڑی روک دی تو پریزے نے اسے الجھ کر دیکھا۔ بس کافی پینی ہے مجھے، آؤ تم بھی کچھ لے لو۔ مگر پریزے نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، مورے ڈانٹیں گے مجھے، گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر لے جائیں آپ۔ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ وہاں تم پر اتنا ظلم ہو رہا تھا اور تم اب بھی گھر ہی جانے کی بات کر رہی ہو، ذرا کھسکی وسکی تو نہیں ہوئی تم؟ امان نے حیرت سے پوچھا تو پریزے خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے نہ ہاں بولا اور نہ ہی نہ۔ اچھا رکو، مجھے کافی پینی ہے، وہ تو پی کر ہی جاؤں گا میں۔ یہ کہتے ہوئے امان نے غور سے پریزے کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر اب خون جم چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ پی لیں، میں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں۔ پریزے کے جواب پر امان کو اپنی سدکی محسوس ہوئی۔ وہ شخص جس سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، وہ اس لڑکی سے بات کر رہا تھا اور جواب میں اسے اگنور کر رہی تھی، تو امان کا جھنجھلانا بنتا تھا۔ اچھا رکو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور چند ہی منٹوں میں اپنی کافی لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ باقی سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ کیسے ہی گھر پہنچے تو امان نے اسے دروازے پر اتار دیا اور کہا، مورے میرے متعلق پوچھے تو بتا دینا کسی ضروری کام سے گیا ہوں۔ پریزے نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلا کر اندر آ گئی۔ اس کی دھڑکنیں اب جا کر تھمی تھیں، ورنہ پورے راستے وہ اپنے جسم کی لرزش کو ہی چھپانے میں ہلکان ہوتی رہی تھی۔ 2 ماہ بعد اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ امان کا نام تو اسے معلوم تھا، مگر دیکھا اس نے پہلی مرتبہ تھا۔ اوپر سے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ اپنی ماں کی طرح ہی ظالم نہ ہو، لیکن وہ ویسا نہیں تھا، بلکہ اس کے احساسات ابھی تک زندہ تھے۔ نہ جانے کیوں اندر آتے آتے پریزے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ چکی تھی، جو مورے نے کمرے کی کھڑکی سے ہی دیکھ لی تھی، اور اب ان کے دل پر برچھیاں چل رہی تھی کہ آخر انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ جانے ہی کیوں دیا تھا۔ آ گئی ہو تم؟ پریزے ابھی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی جب مورے نے تیکھی آواز میں پوچھا تو وہ ایک دم سے سہم گئی۔ امان کہاں ہے؟ مورے نے تیز لہجے میں پوچھا تو اس نے وہی بتایا جو امان نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا کہ انہیں ضروری کام تھا تو وہ چلے گئے۔ یہ سنتے ہی مورے تیزی سے آگے بڑھی اور پریزے کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر مروڑنے لگی۔ تم کل کی آئی لڑکی کی خاطر؟ ایک تو وہ مجھے یہاں چھوڑ کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوسرا میرا فون بار بار کاٹ رہا ہے، بتاؤ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ پریزے مسلسل درد سے چیخ رہی تھی، مگر مورے بھی اس کی چیخوں کے ساتھ بالوں پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتی جا رہی تھی۔ مورے میں نے کچھ نہیں بتایا انہیں، پریزے نے بمشکل کہا، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، اتنی معصوم تم ہو نہیں جتنی نظر آتی ہو، کر لو اپنے دل کی، لیکن یاد رکھنا اسی امان کے ہاتھوں تمہاری بوٹیاں کرواؤں گی۔ مورے نے یہ کہہ کر اسے دھکا دیا اور وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری۔ اس کی تھوڑی پر خراشیں آ گئی تھیں جن میں سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا۔ جب وہ وہاں سے چلی گئیں تو پریزے بمشکل کھڑی ہوئی اور کھڑے ہوتے ہوئے اسے علم ہوا کہ اس کی ٹانگ میں بھی شدید قسم کا بل آ گیا ہے۔ وہ بے حد مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور جاتے ہی ہچکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیا۔ آخر کیوں ہو گئی تھی اتنی اچانک سے اس کی زندگی مشکل؟ اس نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، پھر کیوں ہوا ایسے؟ اچھا ہوا خادم مر گیا، بہت اچھا ہوا، اگر مجھے موقع ملتا تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ اسے میں نے کیوں نہیں مارا بس۔ روتے روتے اس کے دماغ میں ایک باغی سوچ آئی تو پریزے نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔
جو بھی ہے اس گناہ کی سزا مجھے ہی بھگتنی ہے، اگر اسے میں مارتی تب بھی اور اگر میرے بھائی نے مارا تب بھی، لیکن مجھے خوشی ہے اس جیسا کچرا اس دنیا پر مزید نہیں ہے۔ وہ شدید جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی، اگر موقع ملا تمہارے خاندان میں خادم جیسا جتنا بھی کچرا ہے سب صاف کر دوں گی۔ میں اس مرتبہ اپنے بھائی سے نہیں کہوں گی بلکہ خود کروں گی۔ اس نے مورے کو تخیل میں لاتے ہوئے کہا تو اس کے بعد ہلکا سا مسکرا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اب اسے پرسکون نیند آنے والی تھی اور یہ بات پریزے اچھے سے جانتی تھی۔ دوسری جانب مورے مسلسل امان کو فون کر رہی تھی، مگر وہ بھی اسی روانی سے ان کا فون کاٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی کہ اس نے مورے کی بات مان کر اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ امان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ نہ وہ اس لڑکی کو اس گھر میں لایا ہے نہ ہی وہ اس کی پسند ہے، پھر مورے کیوں بار بار فون کر کے اس کی شکایتیں مجھے لگاتی ہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح تھی کہ مورے یہ چاہتی تھی کہ امان حویلی واپس آ جائے اور اس لڑکی پر ویسے ہی ظلم کرے جیسے وہ چاہتی تھی، اور تبھی امان حویلی واپس نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آج پریزے کو دیکھ کر امان کا دل چاہا وہ سچ مچ حویلی چلا جائے، بلکہ اسے حیرت اس بات پر زیادہ تھی کہ ملازمین اتنے خوبصورت کب سے ہونے لگے ہیں، مگر وہ جا کر اس ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جو اس کی مورے ملازمین پر کرتی تھی۔ اور یہ بھی امان جانتا تھا کہ اگر اس نے پریزے کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو مورے کھڑے پیروں اسے گھر سے نکالنا برا نہیں جانیں گی، لیکن وہ کبھی بھی اس ملازمہ کی شادی اس سے نہیں کروائیں گی، تو بہتر تھا وہ ان سب معاملات سے دور ہی رہے۔ تقریباً رات کا تیسرا پہر تھا جب پریزے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی نیند پہلے بہت گہری ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی اس کی نیند ہلکے سے شور سے ہی کھل جاتی تھی، مگر آج وہ زخموں سے چور تھی تو تھک کر گہری نیند میں ہی سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ اسے یوں لگا جیسے کھڑکی سے کوئی اس کے کمرے میں کودا ہے۔ چونکہ کمرے کی ساری بتیاں بند تھیں تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ دوبارہ سے منہ پر کپڑا ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جب پھر اسے اپنی چارپائی کے ساتھ کسی کا ٹکراؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی اندھیرے میں چلتا ہوا اس کی چارپائی کے ساتھ ٹکرا گیا ہو۔ پریزے اب کی مرتبہ اٹھ بیٹھی اور آنکھیں کھول کھول کر چاروں جانب دیکھا، مگر ابھی بھی اسے اپنا وہم محسوس ہوا کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پریزے واپس خاموشی سے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی جس سے وہ خبردار ہو کر چوکنا ہو جاتی۔ ابھی وہ کچی پکی سی نیند میں تھی جب ایک دم سے اسے اپنے اوپر بھار محسوس ہوا۔ پھر کسی نے اپنا ہاتھ پوری مضبوطی سے پریزے کے منہ پر رکھ دیا تاکہ اس کے منہ سے کوئی آواز وغیرہ نہ نکل سکے۔ پریزے کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو بچانے اور چیخنے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے اوپر حاوی ہونے والا وجود کافی طاقتور تھا۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس وجود نے پریزے کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ خود کو بچانا چاہتی تھی مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن جب وہ شخص حد سے بڑھنے لگا تو پریزے کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور اس نے دل ہی دل میں رب سے مدد مانگتے ہوئے پوری طاقت لگا کر اس آدمی کو دھکا دے دیا جو دھڑام سے زمین پر جا گرا تھا۔ پریزے نے اسے مزید مہلت نہیں دی اور تیزی سے اپنے تکیے کے نیچے سے چاقو نکال کر اس شخص میں گھونپ دیا، یہاں تک کہ اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ وہ چاقو کس جگہ پر لگا ہے۔ اس آدمی کی چیخوں سے ڈر کر پریزے نے چھری ویسے ہی چھوڑ دی اور باہر کی طرف بھاگی، لیکن وہ چیخیں پہلے ہی اپنا کام دکھا چکی تھیں۔ حویلی کے باقی افراد اٹھ کر وہاں اس کے کمرے کے باہر آ گئے اور جب انہوں نے پریزے کو یوں باہر بھاگتے ہوئے دیکھا تو مورے نے اسے زور سے پکڑ لیا، مگر وہ مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کر رہی تھی کہ میرے کمرے میں کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب کمرے کی بتی آن کر کے دیکھا تو سب دنگ رہ گئے، کیونکہ اس کمرے میں امان کے چچا کا بیٹا بے ہوشی کی حالت میں فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے پیٹ میں گھونپی گئی چھری سے خون بھل بھل باہر نکل رہا تھا، یعنی اس کی حالت کافی نازک تھی۔ پریزے کو فی الحال نظر انداز کر کے اسے ہسپتال لے کر گئے تو مورے نے پریزے کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ چچا نے منع کیا کہ اس منحوس کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اس نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو مورے نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اسے گھر چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جو لڑکی مارنے کا حوصلہ رکھتی ہے وہ یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی ہے۔ ہسپتال پہنچ کر امان کو بھی فون کر دیا گیا۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد علم ہوا کہ زاہد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ چچا نے تو اسی وقت پولیس کو بلا لیا۔ پریزے کونے میں نیچے سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب پولیس آئی تو اس کی تو جان ہی فنا ہونے لگی۔ اس نے بھاگ کر پولیس کے ایک افسر سے کہا، سر مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ افسر مورے کو جانتا تھا اور ان کی طاقت سے بھی واقف تھا۔ اس نے مورے کو دیکھا اور پوچھا، میڈم اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ مورے نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ پریزے کی بات سنے بغیر زاہد کا بیان لینے چلا گیا۔ پیچھے مورے نے پریزے کی کلائی تھامی اور خاموشی سے اسے اپنے ساتھ بینچ پر بٹھا لیا، کیونکہ اس وقت وہ کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب پولیس افسران باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ زاہد نے اس لڑکی کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے آدھی رات کو زاہد کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے، اس کی بھاگنے میں مدد کی جائے۔
बदले में वो जो मांगेगा वो उसे देने के लिए तैयार है। मगर जाहिद ने उसे मना कर दिया तो पहले तो परीजे ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, हत्ता कि अपनी खिदमत तक भी पेश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो परीजे ने बेदर्दी से उसे छुरी मार दी। इसके बाद वो वहां से भागने लगी तो घर वाले तब तक वहां पहुंच चुके थे। परीजे के सामने वो मोरे को जाहिद का यह बयान पढ़कर सुना रहा था। परीजे ने इस बात की नफी की और ऊंची आवाज में बोली, वो शख्स झूठ बोल रहा है, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए मैंने छुरी मार दी। मैं चाकू तकिए के नीचे रखकर सोती हूँ, डर लगता है इसलिए वो बंदा झूठ बोल रहा है। मगर मोरे ने पुलिस अफसर को इशारा किया कि वो मजीद कार्रवाई के लिए परीजे को अपने साथ थाने लेकर जा सकते हैं। परीजे ने नफी में सर हिलाया, मगर मोरे ने उसकी कलाई फीमेल पुलिस ऑफिसर को पकड़ा दी। परीजे ने चीख चीख कर पूरा अस्पताल सर पर उठाया हुआ था। उसी वक्त जब परीजे को वो लोग लेकर जा रहे थे तभी अमान वहां आ गया। उसने हैरत से पूछा कि इसको क्यों लेकर जा रहे हैं और जाहिद को क्या हुआ है। वो हैरत से मोरे से ये सब कुछ पूछ रहा था। जब परीजे ने कॉरिडोर में मुड़ने से पहले गर्दन पीछे करके अमान को देखा और पूरी आवाज से बोली, अमान ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ, जाहिद ने बदतमीजी की थी मेरे साथ। अभी वो कुछ और भी बोल रही थी लेकिन पुलिस वाले उसे लेकर कॉरिडोर से तब तक मुड़ चुके थे। अमान ने हैरत से मुड़कर उस लड़की को देखा जो बड़े दावे से उसे बुला रही थी। ऊपर से उसकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा कहीं से भी किसी मुलाजमा का नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो पूरे हक से उसका नाम बुलाते हुए अपनी बात कर रही थी। अमान अजीबोगरीब शशोपंज में पड़ चुका था। उसने मोरे को देखा तो मोरे ने उसे वही बात बताई जो जाहिद ने बयान दिया था। लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों बता रही है? मोरे ने कंधे उचका दिए। वैसे भी अभी वो किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से आधी रात की जागी हुई थी तो वो काफी थक चुकी थी। बाकी घर वाले वहां जितने भी मौजूद थे उन सब ने यही बताया कि हमने शाहिद की चीखें सुनी थी। जब आगे आए तो ये लड़की भाग रही थी और जाहिद के पेट में उसने छुरी घोंप रखी थी। अमान जो परीजे के लिए कल से अपने दिल में एक नरम गोशा महसूस कर रहा था, ये सारी सूरत हाल देखकर काफी परेशान और अचंभे का शिकार हो चुका था। उसे यकीन नहीं आता था कि ये मक्खन मलाई की बनी नाजुक सी लड़की ऐसा काम भी कर सकती है भला। लाख चाहने के बावजूद उसे किसी की बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। जैसे परीजे रोते हुए उसे बता रही थी कि जाहिद ने उसके साथ बुराई करने की कोशिश की है, उसे तो वही हक बचाने लग रही थी। मगर इस बात का फैसला वो अभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमान ने सोच लिया था कल ही वो जाकर परीजे से खुद थाने में मिलकर असल बात पूछेगा। वो हवेली वापस आया तो अचानक से उसे अपनी बीवी का ख्याल आया कि वो कहाँ है। इस सारी सूरत हाल में उसने उस बनी हुई लड़की को एक मर्तबा भी नहीं देखा था। अचानक एक मुलाजमा उसे दिखाई दी तो अमान ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की साहब? मुलाजमा ने हैरत से पूछा। अमान को अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो उस बनी हुई लड़की का पूछे, मगर उसकी नौबत भी नहीं आई क्योंकि बाहर मोरे ने उस मुलाजमा को बुला लिया था। वो खामोश हो गया और अगले दिन जब परीजे से मिलने गया तो वो मुसलसल एक ही बात कहे जा रही थी, अमान जाहिद ने बदतमीजी की थी मेरे साथ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारी बात का? अमान ने बनते हुए पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसे परीजे से हमदर्दी महसूस हो रही थी। क्योंकि बीवी हूं मैं आपकी, ये कहकर परीजे ने रोना शुरू कर दिया और अमान की हालत ऐसी थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या सच में परीजे ही वो लड़की थी जिसके साथ उसका निकाह हुआ था? क्या क्या कहा है तुमने? अमान ने यकीन दहानी के लिए पूछा तो परीजे ने सिसकते हुए कहा, ठीक है, बीवी के तौर पर कबूल न करो, वैसे भी मुझे तुम अमीर जातों से इतनी उम्मीद भी नहीं है, लेकिन क्या इंसान होने के नाते तुम मेरा दुख समझ सकते हो? परीजे और भी कुछ कह रही थी मगर अमान को सुनाई दे ही कब रहा था। उसे सिर्फ यही बात अपने कानों में बजती हुई महसूस हो रही थी कि परीजे उसकी बीवी थी। इतने में थानेदार ने आकर वक्त खत्म होने का बोल दिया और ना चाहते हुए भी अमान उसे कोई दिलासा दिए बगैर वहां से वापस आ गया। अगले रोज जाहिद भी घर आ गया था। डॉक्टरों के मुताबिक जख्म थोड़ा गहरा था जो महज आराम करने और चंद दवाइयों से ही ठीक हो जाना था। जाहिद भी अपनी बात पर पक्का था। जब परीजे की अदालत में पहली पेशी हुई तो हैरत अंगेज तौर पर परीजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कमरे अदालत में मोरे, अमान और इक्का दुक्का अफराद के अलावा व्हील चेयर पर जाहिद भी मौजूद था। जब वकील ने परीजे से सवालात शुरू किए तो उसने हाथ उठाकर वकील को बोलने से मना कर दिया। फिर खुद स्पाट लहजे में बोली, जाहिद ने जो बयान मेरे खिलाफ दिया है वही सब है। मैं हवेली में कैदियों किसी हैसियत से रह रही थी, मुझे फरार चाहिए था, लेकिन हवेली का सख्त पहरा होने के बाइस मेरे लिए वहां से भागना बेहद मुश्किल काम था। मैंने जाहिद को इस काम के लिए चुना। रात के दूसरे पहर मैंने जाहिद को बुलाकर इस काम के लिए राजी करने की कोशिश की और बदले में उसे हर शय का लालच दिया, लेकिन वो बजाय मेरा साथ देने के मुझे इस काम से रोकने लगा। साथ ही ये भी कहने लगा कि तुम वन्नी होकर आई हो और जो लड़कियां वन्नी होकर आती हैं उनकी किस्मत में यूं ही सारी उम्र हवेली में एक मुलाजमा की तरह ही रहना होता है।
बस मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने जाहिद को छुरी दिखाते हुए वहां से पीछे हटने की धमकी दी, मगर वो मुझे मुसलसल रोकता रहा। उस पर गुस्से में आकर मैंने जाहिद पर हमला कर दिया और इससे पहले कि मैं भागने में कामयाब होती, बाकी घर वालों ने आकर मुझे रोक लिया। ये कहकर वो खामोश हो गई। जहां अमान को उस बयान पर हैरानी हो रही थी, वहां बाकी सब अफराद भी हैरत ज़दा थे कि वो लड़की जो कल तक जाहिद को मुजरिम गिरदान रही थी, आज कैसे यूं अचानक से अपना जुर्म कबूल कर सकती है भला। मोरे खुद हैरान दिखाई दे रही थी, जाहिद भी हैरान था। खैर अदालत ने फैसले के लिए अगली पेशी दे दी, क्योंकि इसमें एक और केस की मुदाखलत हो रही थी और वो वन्नी का केस था। जब परीजे को पुलिस वहां से लेकर जाने लगी तो अमान ने उससे बात करना चाही, मगर परीजे ने मना कर दिया कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। अमान ने उस नाजुक सी लड़की को गौर से देखा जो उस वक्त पत्थर की सी मूरत लग रही थी। उसके चेहरे के तासुरात एकदम तने हुए थे और निगाहें स्पाट थीं। आंखों में ना आंसू था, ना ही यकीन दहानी की कोई रमक। वो खामोशी से जाकर पुलिस के डाले में बैठ गई। अमान उसके पीछे जाने लगा तो मोरे ने मना कर दिया कि तुम इस लड़की के पीछे नहीं जाओगे, अब जो होगा उसे भुगतने दो। मुझे भी अंदर कहीं शक था कि हो सकता है जाहिद ने वाकई उसके साथ बदतमीजी की हो, मगर इसका अंदाज, लहजा और बातें देखकर लगता है कि कोई उसके साथ बदतमीजी करने की जुर्रत कर सकता है। खबरदार अमान, उस लड़की के पीछे मत जाना, पहली और आखिरी मर्तबा रोक रही हूं मैं तुम्हें। अमान ने मोरे को मनाना चाहा, मगर वो अपनी बात पर बिल्कुल डटी हुई थी। उनके लहजे में जरा सी भी लचक महसूस नहीं हो रही थी। अमान ने मोरे की बात मान ली और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे जानना चाहिए था, परीजे के दिल का हाल मालूम करना चाहिए था। आखिर को वो उसकी बीवी थी और यही उसने गलती की थी। परीजे 2 दिन जेल में उसका इंतजार करती रही, मगर अमान अपनी मोरे के वादों में जकड़ा हुआ थाने नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर हवेली ये खबर पहुंच गई कि परीजे जेल से भाग गई है। ये बात अमान के लिए एक नया धचका था। उसे जब बताया जा रहा था कि परीजे जेल से भाग गई है, तभी वो बेयकीनी के आलम में गाड़ी लेकर जेल गया तो वाकई जो खबर सुनी थी उसकी तस्दीक हो गई थी। लेकिन वहां उसके लिए परीजे एक खत छोड़कर गई थी जिसमें बमुश्किल 2 से 3 सतरें लिखी हुई थी। काश आपने इंसानियत दिखाकर मुझे इंसान समझा होता, मेरा पता लिया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। परीजे भाग चुकी थी जेल से। जब अमान ने इस बात की खोज लगाई कि वो कैसे भागी है, तो पता चला कि कोई आदमी उससे मिलने आया था। बस उसके बाद किसी तरह से वो ताला तोड़कर भाग गई है। ये बात बड़ी अनहोनी थी कि परीजे, जिसे हाथ लगाते हुए डर लगता था, भला वो कैसे ताला तोड़ सकती है। और आदमी? कौन आदमी? उसका भाई? क्या उसके भाई ने भगाया हो उसे यहाँ से? ये एक पहेली थी जिसे कोई भी नहीं सुलझा पा रहा था। अमान ने परीजे के घर और हर मुमकिन जगह पर उसके ठिकाने को तलाश किया, मगर बेसूद। परीजे उसे कहीं भी नहीं मिली थी। अब तो मोरे उसे दिन रात बद्दुआएं देती नहीं थकती थी। अमान ने परीजे को ढूंढने की बेहद कोशिश की, मगर वो इतनी कोशिशों के बावजूद उसे नहीं मिली थी। मगर एक रोज अचानक से परीजे उसकी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। चंद लम्हों के लिए तो अमान को लगा ये इत्तफाकी बात है, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। इस बात का भी अमान को एहसास हो गया था कि परीजे जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकराई है। लेकिन ये एहसास अमान को बहुत देर के बाद हुआ था। वो उसे सीधा अस्पताल लेकर जाना चाहता था, मगर परीजे ने मना कर दिया तो वो उसे अपने एक अपार्टमेंट में ले आया। जहां आते ही सबसे पहला सवाल अमान ने यही किया कि तुम जेल से क्यों भागी, जब अपना जुर्म कबूल कर ही लिया था तो। इस बात पर परीजे पहले तो खामोश रही, फिर नरमी से बोली, मैं डर गई थी कि कहीं मुझे सजाए मौत ना हो जाए, बस इसीलिए। अमान, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। अगर मुझसे निकाह कर लिया था तो खबर तो लेते, इंसानियत नाम की भी चीज होती है। मगर तुम्हारी मोरे ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। अगर मैं चाहती तो अब भी ना आती, मगर मैं तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों? अमान ने हैरत से पूछा। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जब भाग गई थी तो? और वो खत, उसका क्या मतलब था? परीजे ने गहरा सांस लिया और बोली, या तो मुझे इस सारी झंझट से निकालो या फिर मुझे तलाक दे दो। मैं यूं 2 कश्तियों की मुसाफिर बनकर नहीं रह सकती हूँ। मुझे आजादी चाहिए। मैं इतना भी जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह जालिम नहीं हो, और अगर तुम्हारा भाई खुद्दाम मरा है तो जरूर उसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा, तो ही मेरे भाई ने उसकी जान ली होगी। उस बात पर अमान भड़क कर बोला, मेरा भाई कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छे से जानता था। वो इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था। फिर तो जाहिद ने भी कुछ नहीं किया होगा, इस बात का यकीन होगा तुम्हें? परीजे ने तंजिया अंदाज में कहा तो अमान चौंक कर बोला, यानी क्या कहना चाह रही हो तुम? उस रात गलती जाहिद की थी? ये सोचकर अमान का खून खौलने लगा, मगर परीजे ने जल्दी से नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं, उसका गुनाह नहीं था, मेरी गलती थी जो जुल्म से बर्दाश्त करती रही। मुझे पहले भाग जाना चाहिए था तो आज इतनी मुश्किलात में ना फंसी होती। मुझसे क्या चाहती हो? अमान ने बात मुख्तसर करना चाही तो परीजे ने बड़े एतमाद से कहा, मुझे तलाक चाहिए। नहीं देनी तो अपनी बीवी के तौर पर कबूल करो मुझे। मैं ये भागने की जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती हूँ। ये बात अमान के लिए खुशी की भी थी और परेशान कुन भी।
क्योंकि जिस लड़की को उसने पहली ही निगाह में अपना लिया था वो उसकी बीवी भी थी और उसके साथ रहने की ख्वाहिश भी कर रही थी। और दूसरी परेशानी की बात यह थी कि थाने और पुलिस के रिकॉर्ड में वो फरार मुजरिम थी, तो अमान भला उसे कैसे अपने साथ रख सकता था। अगर रखता और घर वालों को इस बात का इल्म हो जाता तो सबने उसे गुनाहगार समझना था कि अमान ने ही परीजे को जेल से भागने में मदद की है। सो वो काफी शशोपंज का शिकार था जब परीजे ने उसे दोबारा जल्दी फैसला लेने का कहा। उस रात तुम्हें जेल से भगाया किसने था? परीजे ने गौर से अमान को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, हालांकि मुझे भगाने के लिए तुम्हें आना चाहिए था अमान, मगर तुम नहीं आए तो ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है कि उस रात मुझे वहां से किसने निकाला था। ये कहकर परीजे ने बड़े अंदाज में पीछे कुर्सी के साथ टेक लगाई। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी नजर आती हो, अमान ने अफसोस से कहा। तो परीजे नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं अमान, मैं इतनी ही मासूम थी, मगर जानते हो मुझे ऐसा बनाने में किसका हाथ है? तुम्हारे घर वालों का, उस कहानी का, उस किरदार का जो खुद तो मर गया मगर मेरे लिए तुम्हारे घर के भूल भुलैया पीछे छोड़ गया। वो वाकई उस वक्त मासूम नहीं लग रही थी। अमान के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि उसे परीजे को देखकर खौफ महसूस हो रहा था। महज थोड़े से दिनों में ही वो कितनी बदल चुकी थी। उसे अच्छे से याद है जब मोरे उसका हाथ जला रही थी और वो उसे अस्पताल लेकर गया था, कितनी डरी हुई थी परीजे, और ये किस कदर निडर होकर उसके सामने बैठी थी। अमान को रश्क आने लगा। हाथ ठीक है तुम्हारा? याद आने पर उसने परीजे के हाथ के मुतालिक पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ऐसी बातें मत पूछो अमान, बिला वजह मैं तुमसे उम्मीद लगा बैठूंगी, फिर जब मुझे तुम छोड़ दोगे तो इसका भी दुख होगा। खैर तुम्हारे लिए चॉइस रख रही हूँ, या बीवी के तौर पर कबूल करो या मुकम्मल छोड़ दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और यही अमान ने उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था। परीजे को यकीन नहीं आ रहा था कि अमान इतना दिलेराना फैसला भी कर सकता है, मगर वाकई में ऐसा हो गया था। कितनी ही देर वो शौक के आलम में बैठी यही सोचती रही कि क्या वाकई अमान ने उसे अपनी बीवी न सिर्फ मान लिया है बल्कि अपने साथ रहने की इजाजत भी दे दी है। मगर एक बात याद रखना परीजे, तुम इसी अपार्टमेंट में रहोगी अकेले, कहीं बाहर नहीं निकलोगी, और जो मैं कहूंगा वो सब मानोगी। बदले में मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ न खुद ऐसा कोई जुल्म करूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे, ना ही दूसरों को इजाजत दूंगा। मैं खुले दिल से तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। परीजे कितनी देर बैठी अमान को देखती रही, मगर जब उसे यकीन हो गया तो फौरन से उठकर अमान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अमान भी रो रहा था, लेकिन वो खुश था कि उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। लेकिन उसने परीजे को सबसे छुपाकर इस अपार्टमेंट में रखा हुआ था। तकरीबन परीजे को वहां आए हफ्ता हुआ होगा जब एक दिन इंतहाई परेशानी के आलम में अमान अपनी छोटी बहन को लेकर उस अपार्टमेंट में आया। परीजे उसकी बहन निदा को देखकर बहुत हैरान हुई, जो 16-17 बरस की बड़ी मासूम और प्यारी सी बच्ची थी। हैरत परीजे को इस बात पर थी कि जब अमान ने उसे छुपाकर रखने का फैसला किया है तो अपनी बहन को यहाँ पर क्यों लाया है? क्या वो घर जाकर ये बात सबको बताएगी नहीं? परीजे को अपनी फिक्र होने लगी थी। उसने अमान से इस बात का जिक्र किया तो अमान ने साफ साफ कह दिया कि निदा अब से यहीं रहेगी, हो सकता है ये हवेली जाए लेकिन ये मुश्किल अमर है। क्यों? परीजे के पूछने पर अमान ने परेशानी से बताया कि इसे कुछ हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है, न कुछ खाती है न बोलती है, बस खामोशी से बैठी रहती है, हत्ता के हवेली के मकीनों को देखकर डरने भी लगती है। इस बात पर परीजे चौंक गई, क्योंकि जो कुछ अमान उसे बता रहा था वो बहुत अच्छे से समझ रही थी, मगर उसने ऐसी वैसी किसी बात का जिक्र भी अमान के सामने नहीं किया था। क्या यहाँ पर ये ठीक हो जाएगी? परीजे ने अमान को कुरेदते हुए पूछा तो वो नरमी से बोला, मैं इसका इलाज करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये ठीक हो जाए, वरना शायद यहीं रहे। फिर क्या मैं इससे दोस्ती करने की कोशिश करूं? परीजे ने यह बात पूछी तो अमान खुशी से बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी बहन वापस जिंदगी की तरफ आती है तो। हवेली में ये डरने बहुत लग गई थी। मोरे तो उसे पीरो फकीरों के पास लेकर जाना चाहती थी, तभी मैं इधर ले आया, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है आजकल का। परीजे ने समझकर इस बात में सर हिला दिया। उसने निदा से बात करने की भरपूर कोशिश की, मगर उस लड़की ने गोया कसम खा रखी थी कि वो बिल्कुल भी मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलेगी। 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। इन दिनों अमान भी घर पर ही था। एक रोज अमान ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने का फैसला किया तो निदा बहुत रोई, मगर उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और बोली, अगर आप जबरदस्ती मुझे लेकर गए तो मैं वहां से भाग जाऊंगी। सूरत हाल काफी परेशान कुन बन चुकी थी, जिसका हल परीजे ने निकाला और कहा, मैंने BS साइकोलॉजी कर रखी है, अगर आप कहें तो क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। अमान ने उसे इस बात की इजाजत तो दे दी, लेकिन वो अभी भी मुतमईन नहीं था। लेकिन फिर एक ही दिन में परीजे को उसे अपने साथ कमरे में ले गई और खुद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अमान को कमरे से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी तो उसने बेचैन होकर जोर से दरवाजा बजा डाला। जब परीजे ने दरवाजा खोला तो अमान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर परीजे के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और तनफ्फुर से पूछने लगा, बताओ क्या किया है तुमने मेरी बहन को, बताओ। वो गुस्से से पूछता जा रहा था, जबकि परीजे ने उसका ये शदीद रूप पहली मर्तबा देखा था। वो बस खामोशी से टकर टकर अमान का चेहरा देख रही थी, जिसने वादा किया था कि वो उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, कभी हाथ नहीं उठाएगा।
फिर अब महज अपनी बहन की रोने की आवाज सुनकर ही वो उस पर हाथ उठाने को दौड़ा था। इससे पहले कि परीजे कुछ कहती, निदा ने खुद ही बता दिया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इन्हें छोड़ दें। फिर क्या बात है गुड़िया, क्यों रो रही थी? अमान परीजे को छोड़कर वापस उसके पास आया तो वह फिर से खामोशी की चादर ओढ़कर बैठ गई। इस वाक़े के बाद परीजे ने अमान को बिल्कुल भी 2 से 3 दिन नहीं बुलाया। एक रोज वो निदा को लेकर बाहर गई। अमान को उसकी हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। उसकी तैयारी, यूं बुर्का पहनना और ना जाने क्या कुछ। अमान को शक होने लगा कि वो कुछ गलत करने जा रही है, मगर वो खामोशी से बैठा अपनी सोचों की नफी करने लगा। निदा और परीजे को वापस आने में काफी देर हो गई थी। जब वो वापस आई तो अमान ने परीजे से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी और गई कहाँ पर थी? जिस पर वो चटक कर बोली, इतनी बेसब्री हो रही थी तो हमारे साथ खुद चले जाना था। अमान का दिल चाहा वो इस लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने सब्र से काम लिया, क्योंकि आज गैर महसूस तौर पर निदा काफी खुश लग रही थी। उससे छोटी छोटी बातें भी करने लगी। उसके चेहरे पर जो एक तनाव की सी कैफियत थी वो भी जाती रही थी। काफी हद तक निदा पुरसुकून हो चुकी थी। अमान ने 1-2 मरतबा निदा से भी पूछा कि कहाँ लेकर गई थी तुम्हें, तो वो खामोश हो गई। उस बात का जवाब निदा ने भी नहीं दिया था। अब अमान को हैरत होने लगी थी, लेकिन वो चुप कर गई, क्योंकि उसकी बहन ठीक हो रही थी और उसके लिए यही बात काफी थी। फिर वो हुआ जो अमान ने कभी सोचा भी नहीं था। हवेली से फोन आ गया कि जाहिद का कत्ल हो गया है। अमान बहुत हैरान हुआ कि भला कैसे इतनी अचानक उसका कत्ल हो सकता है और कौन कर सकता है ये कत्ल। लेकिन ये उक्ता भी 2 दिन बाद खुल गया, जब पुलिस उसके घर के दरवाजे पर मौजूद थी। अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगे कैमरे से अमान ने पहले ही पुलिस को देख लिया था। उसने परीजे को छुपने का बोला, मगर वो खामोश खड़ी रही, क्योंकि उन दोनों की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। अमान ने फिर कहा तो परीजे ने नरमी से कहा, मैंने खुद बुलाया है पुलिस को। मगर क्यों? लेकिन उसका जवाब देने के बजाय परीजे ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने परीजे को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अमान ने उसे छोड़ने का बोला, मगर पुलिस अफसरान ने बताया कि हमें सबूत मिले हैं। जाहिद खानजादा का कत्ल आपकी वाइफ ने किया है। ये पहले भी फरार मुजरिम रही हैं और अब भी तो उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। जो बातें अमान के कान सुन रहे थे वो चाहकर भी यकीन नहीं करना चाह रहा था। जब पुलिस उसे लेकर जाने लगी तो वो 1 मिनट का बोलकर निदा के जोर से गले लगी। फिर माथा चूमते हुए बोली, ख्याल रखना अपना, ये दुनिया बहुत जालिम है। अपने लिए अब से तुम्हें खुद लड़ना है। अमान को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन तब तक पुलिस उसे लेकर जा चुकी थी। उसके जाने पर निदा बहुत रोई, लेकिन निदा ने अमान के लाख पूछने पर भी अपना मुंह नहीं खोला। जिंदगी में ये मोड़ बहुत अजीब सा आ गया था। वो थाने परीजे को मिलने गया तो पहले तो उसने मिलने से ही इनकार कर दिया, लेकिन फिर अमान की लाख जिद पर जब मिलने के लिए राजी हुई तो उसे देखते ही पूछे बगैर बोली, अगर मुझसे ये पूछने आए हो कि क्या वाकई जाहिद को मैंने मारा है तो हाँ, मैंने ही मारा है। कत्ल किया है उस लड़के का मैंने, और क्यों किया है ये नहीं बता सकती। मगर अमान वहां से जाने पर रजामंद ही नहीं था। लाख पूछने पर परीजे ने बताना शुरू किया कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। जानते हो फिर क्या हुआ? मेरे भाई ने उसे मार दिया और मैं वन्नी होकर तुम्हारे ही घर आ गई। ये खबर अमान के लिए बहुत बड़ी और नई थी। खादिम उसका भाई जो इतना शरीफ दिखता था, वो भला किसी का कत्ल कैसे कर सकता था? अमान अभी इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था जब परीजे मजीद बोली, न जाने तुम्हारे खानदान के मर्द ही ऐसे थे या सभी मर्द ऐसे होते हैं। उस रात जाहिद ने मेरे साथ बुराई करना चाही थी, तभी अपने आप को बचाने के लिए उसे मैंने छुरी मार दी थी। फिर जेल गई तो किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। जानते हो किसने निकाला था जेल से मुझे? जाहिद ने निकाला था। ये बात सुनकर अमान को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि भला जाहिद उसे कैसे निकाल सकता है। परीजे पहले तो उसके खिलाफ बोल रही थी, लेकिन फिर अचानक से परीजे ने बयान भी तो बदला था। वो दिल ही दिल में ये सब कुछ सोच रहा था जब परीजे के जुमलों ने उसकी सोच की तस्हीह कर दी और बोली, उसके बाद वो जेल में आया था। उसने मेरे साथ डील की कि मैं तुम्हें बचाता हूँ, तुम मुझे बचा लो, मेरे खिलाफ बयान मत दो, अपना जुर्म मान लो, मैं तुम्हें जेल से निकाल लूंगा। लेकिन जानते हो उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो बच जाए और मैं सारी उम्र फरार मुजरिम के तौर पर रहूं। खैर मैंने उसकी बात मान ली और वो सब किया जो उसने कहा। फिर तुम दोबारा से मुझे अपने साथ रखने पर राजी हो गए। इतना कहकर वो खामोश हुई तो अमान जल्दी से बोला, तो उसे मारा क्यों है इस वजह से? मगर परीजे फीका सा मुस्कुराकर बोली, नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तो कोशिश की थी बदतमीजी की मेरे साथ, मगर जाहिद ने तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती की है। उस रोज उसे अपने साथ लेकर गई थी और उसकी आंखों के सामने जाहिद का कत्ल किया था, क्योंकि मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद थी, मगर मैं अब उसकी जिंदगी को मजीद बर्बाद नहीं रहने देना चाहती थी। मार दिया मैंने उसे। देखो अब बहन भी तो खुश है ना तुम्हारी, अपने मुजरिम को यूं तड़पता हुआ मरता देखकर। ये बात सुनकर अमान को अपने पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। इसके बाद परीजे को फांसी हो गई, क्योंकि अमान ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो खुद ही नहीं आई। और जिस रोज उसे फांसी हुई वहां सबने शुक्र का कलमा पड़ा, सिवाय 2 लोगों के। निदा तो फूट फूट कर रोई और अमान को उस रोज अंदाजा हुआ कि परीजे के लिए उसकी पसंदीदगी अब शदीद मोहब्बत में बदल चुकी है, जो सारी उम्र खत्म नहीं हो सकेगी।